ویلکم ٹو چولو آسمان. میرے ساتھ ہیں ارسلان اور یاسر کا ویسے نام یاسر نہیں یاسیر ہے. یہ مجھے بتائیے یہ کیا مسٹری ہے؟ مسٹری نہیں ہے، بیسکلی عربی پروننسیشن ہے. اچھا یاسیر لیکن کہا یاسر ہے. یاسیر کو یاسر میننگ کیا ہوگا اس کا؟ یاسر ایک صحابی کا نام ہے. اور آپ کے نام کا کیا میننگ ہے؟ میرے نام کا مطلب شیر ہے. ٹھیک ہے. ارسلان یا وہ کہ آرسنل ہے نا؟ مجھے نہیں آرسنل نہیں، وہ تو فٹ بال ٹیم ہے. وہ نہیں آرسنل سے تو نہیں آپ نے اوکے ارسلان اپنے والد صاحب سے پوچھ کے بتاؤں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیں کہ کلر اسکیمز اور یہ کون سے زیادہ آپ یوز کرتے ہو؟ کلرز کون سے زیادہ یوز؟ ایکچولی ابھی جو سیزن چل رہا ہے رنگین کے ہم بات کریں گے. رنگین میں اٹس آل اباؤٹ وائبرنٹ کلرز. ٹھیک ہے، آپ کے پاس پیسٹل یوز ہو گئے، آپ کے پاس تھوڑے اسٹرانگ کلرز ہو گئے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی فی الحال جو آج کل جو ہمارا جو نیا کلیکشن آ رہا ہے رنگین کا، جو لاسٹ ایئر ہے کلیکشن کا، اس کے بعد ہم لوگ رنگین نہیں کریں گے. ویل برنگ سم تھنگ نیو. تو اس میں وی آر ایکچولی ٹرینڈنگ کلرز، جیسے کہ ابھی آج کل انٹرنیشنلی بھی جو آج کل کلر ٹرینڈس چلے ہیں وہ الیکٹرک بلو پہ زیادہ ایمفیسس ہے. اچھا ٹھیک ہے، الیکٹرک بلوز آپ کو کافی نظر آئیں گے. بلوز کی کافی ساری شیڈس. اس کے علاوہ آپ کے پاس اور اسٹرانگ کلرز سمرز کے، اورنج ہو گیا، مسٹرڈ ہو گیا، یلوز اینڈ ڈارکر شیڈز آف گرین، آپ کو وہ چیزیں بھی نظر آئیں گی. تو اس کے اندر تھوڑا سا فارمل کلرز کے اندر آپ کے پاس تھوڑا سا ڈارک کلرز بھی آ جاتے ہیں جو تھوڑے سے کنزرویٹو مائنڈ سیٹ کے لیے. اس کے اندر بھی کام ہوتا ہے بٹ اسٹل منیمم. وی ہیو اے کالر. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہلو جی ہیلو. جی میں ڈاکٹر جی ڈاکٹر صاحب کیا حال چال ہے؟ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. آج آپ کے یہاں میل ڈیزائنرز جو ہیں وہ آج فوکس کروں گا میں ان کو، کیونکہ دیکھیے ایک چیز جو کہ میل ڈیزائنرز کے اندر ہوتی ہے وہ ان کا جو ایستھیٹکس ہوتا ہے، جب وہ میلز کے لیے ڈیزائن کرتے ہیں ان کی جو کریٹیوٹی ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ان کی فوکس ہوتی ہے میل کے اوپر. تو یہ چیز جو ہمارے کنٹری کے اندر اب پورٹرے ہو رہی ہے وہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھی، کیونکہ ہمارے یہاں جو میلز ہوتے ہیں ان میں اتنا ایستھیٹکس نہیں ہے. وہ جب جاتے ہیں کہیں تو وہ جو پہن لیا وہ پہن لیا، یہ نہیں دیکھتے کہاں جا رہے ہیں. اگر وہ آفس گوئنگ ہیں، کالج گوئنگ ہیں، یا کسی ہائی ٹی پہ جا رہے ہیں، یا کسی لنچ پہ یا ڈنر پہ یا برنچ پر، تو ان کی ایک ویریشن ہونا چاہیے جب وہ اپنے آپ کو ڈریس اپ کرتے ہیں. تو اس ڈریس اپ کرنے کے لیے جو ان کی چیز ہوتی ہے کہ بھئی ان کا کیسا ہیئر اسٹائل ہونا چاہیے، ان کی کیا فزیکل اپیئرنس ہے، وہ میڈیم فریم میں ہے یا اسمال فریم میں ہے یا لارج فریم میں ہے، ان کے کلوتھ کون سے اچھے لگیں گے، کیجول کہاں پہ پہننا ہے ان کو، جب آفس میں ہے تو ان کو کس طرح کی ڈریس پہن. ڈاکٹر صاحب آپ کیا پہن کے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں آپ، بتائیں ڈاکٹرز کی کیسی ڈریسنگ ہونی چاہیے؟ بہت ہی جو ہے ایسی ہونا چاہیے کہ جو دوسرے کو بھی اپیل کرے اور خود اس کو پہنے. دیکھیں نا اب کتنی اچھی آپ نے بات کی. اب یہاں پہ کیا اگر ڈاکٹر ہے تو بس یہ چشمہ لگایا اور چلا گیا؟ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. اچھا بن کے جائیں تاکہ اگلے پیشنٹ کو بھی اچھے لگے. اچھی اپیئرنس ہوگی تو آپ کا جو پیشنٹ ہے جب آئے گا تو وہ آپ کو ایک دیکھے گا کہ کتنا فریش ڈاکٹر لگا. بالکل، اور وہ خود ہی آدھا ٹھیک ہو جائے. بالکل یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آدمی کو خود بخود جب آپ اپنے آپ کو ہی نہیں اچھے لگیں گے تو کسی دوسرے کو کیا اچھے لگیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک آپ کے اندر، اور یہ ساری چیزیں جو براٹ اپ جب آپ کا ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں سے ہی گرومڈ ہوتی ہے. اگر آپ کے گھر کا ایک اچھا براٹ اپ ہے، آپ کی ایک اچھی گرومنگ ہے، پھر آپ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو کن لوگوں کے ساتھ آپ انٹریکٹ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہمیشہ جو آپ کا ایج گروپ ہے آپ اسے 2 یا 3 سال سینئرز کے ساتھ ضرور بیٹھیں. بالکل تاکہ آپ میں ایک لرننگ ہوگی، آپ مینٹل الرٹ ہوں گے اور آپ کی کمیونیکیشن سکلز بڑھتے ہیں. آپ کتنی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ سے کوئی بڑا لڑکا آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہے تو آپ کو شاید اچھی چیزیں بھی سکھائے گا اور بری بھی سکھا دے گا. بری تو میرا خیال آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو ایبزارو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ ایک اچھی ایکسپیکٹ تو لے کے آئیں گے، اس کا اینڈ ریزلٹ بہت اچھا ہوگا. اور ایک چیز یہ کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ہے وہ 3 موسم ہوتے ہیں پاکستان میں. پاکستان میں جو ہے وہ سمر ہے، ونٹر ہے اور اسپرنگ ہے. اب آپ سمر کے لحاظ سے پہلے اگر آپ اپنی گاڑی کے برابر سے دیکھیں کسی شخص کو سخت گرمی میں، جیسے آج کل گرمی ہے 42 کی، اور آپ کو پتا چلے اتنی ڈارک کلر کی اس نے شرٹ جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے تو آپ کو گرمی لگنے لگے گی. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سینس ہونا چاہیے وہ آپ کے اندر آئے تو میرا خیال بہت اچھا ہوگا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جی اچھا دیکھیں سب سے پہلے یہ کہ
समर्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप डार्क कलर्स नहीं पहन सकते, आप बिल्कुल पहन सकते हैं, मगर लेकिन डिपेंड करता है कि आपके पास क्या काम है, आपने उस दिन में क्या करना है। लेकिन अरसलान, आपको नहीं लगता कि इनकी बात भी सही है कि लड़कों की भी अक्ल देखे ना, अगर आप इतनी गर्मी और आपने शॉकिंग कलर कोई पहना हुआ है तो वो और ज्यादा आपको चुभेगा नहीं? तो भाई वही चीज़ तो एस्थेटिक्स होती है, वही चीज़ तो एस्थेटिक्स होती है कि आपने कौन सा कलर कैरी करना है अपने आप पे, वही चीज़ तो आपको फैशन डिजाइनर गाइड करता है। अच्छा, आपको उसी चीज़ पे तो आपको एक्चुअली देखें, बात यही होती है कि आपको ट्रेंड्स देखने बहुत ज़रूरी होता है। आपको जब आप एक टीवी पे शो देखते हैं तो उस पे आपको यही चीज़ देख के कैरी करना होता है कि आप क्या चीज़ आप पे बेहतर लगेगी। ठीक है, उस चीज़ की समझ, सेंस ऑफ अच्छा, स्टाइल होना अब हम चाहिए। मेन जमजमा की जो बात करते हैं वो ये मैं करती कि इतने सारे डिजाइनर्स हैं वहाँ, तो आपको क्या लगता है कि आपकी चीज़ कितनी फर्क है और कहाँ आप स्टैंड करते हैं? कंपटीशन इतना हार्ड है। हम अभी टफ। बहुत ज्यादा कंपटीशन में जाते नहीं हैं, क्योंकि जो भी खास तौर पे हम अपनी लेन की अगर बात करते हैं उसमें जितने भी डिजाइनर्स हैं वो 8 साल 10 साल 12 साल से काम कर रहे हैं। हम अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम करते हैं, उनको उनका करने देते हैं। बेसिक जो कभी ऐसा हुआ कॉपी हो जाए? कॉपी तो बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपका ही डिजाइनर, अगर आपका नेबरहुड रंगीन डिजाइनर है, रेंज अगर आप कभी मार्केट निकलें तो आपको हर शॉप पे, खासतौर पे तारिक रोड पर, लोग तो क्लेम कर रहे हैं कि ये हम लोगों की बनाई हुई है। ये तो गलत, लेकिन वो फिनिशिंग और वो कट जो वो तो पहले बात हुई है है उसकी वजह से सिर्फ हमारी जो अच्छा, मुझे प्रोमिनेंट बताइए कि होती है चीज। लड़कियां तो कंपटीशन इतना ज्यादा है तो आप लोग कहते हैं कि कंपटीशन को हम नहीं वो समझते, हम अपना काम कर रहे हैं। भाई नेवर कंपेयर नेवर कम्पीट, मतलब कि आप जब कंपेयर नहीं करेंगे तो कंपटीशन का सवाल एंड डू यू थिंक अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी करता है, आपसे कोई सीनियर है और वो आपको कहता है कि यार ये कर लो, हाँ, मतलब कि वी रियली प्रेफर क्रिटिसिज्म, मतलब कि दिस गिव्स अस रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मतलब कि कोई हमें, भाई देखिए, जैसे कि आपको एक चीज़ है काफ़ी बोल्ड लगी, किसी और को चीज़ वो काफ़ी अच्छी लगेगी, तो आपको बोल्ड क्यों लगेगी? मैं आपसे पूछूंगा, आपके पॉइंट्स मैं खुद सीखूंगा, देखूंगा कि जी मुझे अब इधर किधर इम्प्रूवमेंट चाहिए। यही चीज़ आपके काम को इम्प्रूव करती है, यही चीज़ आपकी हर चीज़ को इम्प्रूव करती है। एक और कॉल है हमारे साथ, नहीं रखती है, कॉल ड्रॉप हो गई। रावलपिंडी से कॉल थी, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। रिजवान, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, सेल्फ ग्रूमिंग की अगर बात हो तो डिजाइनर के पास अगर कोई आता है, आप लोगों के पास कोई आता है, लड़कियां तो अब नहीं आएंगी तो लड़के ही आएंगे, तो आपकी तो जिंदगी में अब यही डीलिंग है कि लड़कों से ही आपने डील करना है, लेकिन कभी सोचा है कि लड़कियों की डिजाइनिंग भी शुरू करेंगे? एक्चुअली हम वी डू इंटेंड आफ्टर सम टाइम, पहले हम लोगों को यहाँ पर अपनी देखिए एक्चुअली बीवियां आ जाएंगी ना, फिर मत सोचिएगा ये। बीवियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, शादियां हुई आप लोगों की? ओहो, ये तो आप, मैंने आप लोगों से पूछा, आप ये इनकी फैमिली बैकग्राउंड का क्वेश्चन आप छोड़ गई थी एक्चुअली। ये बीवियां अगर इनकी देख रही है ना, ये देख लें, ये मर्द, क्यों मैं बुराइयां मर्दों की करती हूँ, अब पता चला आपको? मैंने आप खुद नहीं बोल सकते थे ना? नहीं, क्यों मैंने बोला? क्यों बोले? मैंने बोला मैं अपने हस्बैंड को ये चीज बनाऊंगी। तो भाई आपको नहीं, आपसे किसी ने मैंने पूछा था? पूछा ना कि प्लीज मुझे अपने बारे में बताएं। आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने बारे में बताएं। एजुकेशन बता दी, डिजाइनिंग में कब आए, ये तो बताएं। माशाल्लाह जी, हमारी खूबसूरत खूबसूरत बीवियां हैं और हमारे बच्चे हैं। इनके मेरे दो अदद बच्चे हैं, ख्याल से नहीं, यकीनन 2 ही हैं। इतनी देर से चुप बैठे हुए, और मेरी अभी रिसेंटली शादी हुई है। आप तो बिल्कुल बोलना चाहिए था आपको, वरना आप तो घर भी नहीं पहुंच सकेंगे। वो तो चले 2 बच्चों वाली है, कहेंगी चलो नहीं, अभी शादी मुझे 2 महीने हुए, इनके तो 2 बच्चे हैं। 2 महीने वाले को तो सच बन के आना चाहिए था। नहीं, इससे ज्यादा नहीं होता। अब इसमें भी आ जाता है ना कि मर्द इतना ही सजा हुआ बेहतर रहता है, इतना ही अच्छा लगता है। लेकिन ये क्यों आपने किया? ये अब देखे मैं इनके पीछे पड़ गई। क्यों आप दोनों ने मुझे अभी तक नहीं बताया? आपने हमसे पूछा नहीं। मैंने आपसे पूछा, अपना बताएं, अपने बारे में बताएं। भाई जैसे ही हमने, और 2 महीने वाले को तो बहुत जल्दी बताना चाहिए। देखे मेरी अभी भी शादी हुई है। भाई मेरी अभी भी शादी हुई है। अच्छा, मुझे बताइए, तो शादियां हो गई तो करना चाहिए ना, बल्कि बीवियों को भी इन्वॉल्व करें इस काम में और उनको भी डिजाइनिंग करवाएं। एक्चुअली अभी देखिए, मतलब मेरे लिए तो स्टेज काफी इनिशियल एडजस्टमेंट का है, मतलब कि अभी हुई है, तो आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद टाइम, क्योंकि जिस फील्ड में हम लोग हैं यहाँ पर टाइम फ्रेम काफी ज्यादा है। आई एम अ वेरी मच मॉर्निंग पर्सन। सुबह को 9 बजे जाना, फिर शाम में 6 बजे तक फैक्ट्री लुक आफ्टर करना। मॉर्निंग पर्सन? नॉट एक्चुअली अ मॉर्निंग पर्सन, ये आफ्टरनून पर्सन है। हाँ, मैं 2 बजे तक इससे लड़ाई होती है? कभी बोलते हैं नहीं, ये बेसिकली इतनी देर से क्यों आ रहे हो? ये एक और ऑफिस में मैं एक्चुअली, हमारा फैक्ट्री होता है कोरंगी पे। अच्छा, तो वहाँ पर आई एम लुकिंग आफ्टर एवरीथिंग। तो ये 2 बजे तक आराम, प्रोडक्शन, वो प्रोडक्शन क्वालिटी वगैरह, एक चीज उसके अंदर, क्रिएटिव डिजाइनिंग क्या है, क्या चीज। हमने बेसिकली डिपार्टमेंट्स बांटे हैं। डिपार्टमेंट बांटे हैं। मैं जितना है क्लाइंटेल, कमर्शियल साइड ऑफ द बिजनेस से
जो भी उसकी प्रोडक्शन होती है वो मैं देखता हूँ। अच्छा, एक बहुत हटके सवाल मैं कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ ये सवाल कि देखें अभी आप लोगों को लोग देख रहे हैं, लड़के देख रहे हैं जो डिजाइनिंग में आना चाहते हैं, वो यही कहेंगे देखो भी डिजाइनिंग कितना स्कोप है डिजाइनिंग में। क्या आपको लगता है कि क्या सिर्फ डिजाइनिंग से ही घर चल रहे होते हैं, या वैसे भी आपके पास इतना हो कि बैकग्राउंड आपका इतना स्ट्रांग हो, या आपके पास इतना तो हो कि कल आप डिजाइनिंग ना कर सकें तो आप क्या करेंगे? देखें, बात ये होती है कि डिजाइनिंग एक पेशा। कॉल ले लूं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। रिजवान, क्या हाल चाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। जो एक्चुअली मेरा बैलेंस खत्म हो गया था, फिर दोबारा मैंने चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। चलें, आप पहले तो माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा कर रही हैं, आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि ये फैशन डिजाइनर हैं, इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर वैसे मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, इसके लिए क्या चीज रिक्वायरमेंट है, मतलब किस तरह मतलब आऊँ, ये मुझे क्या गाइडलाइन करेगा, ठीक है? और दूसरा ये बात है कि जो पहले से मेरा एक दोस्त है, वो हर फन मौला जिसे कहते हैं, यानी कि हर फन में वो मास्टर है, ठीक है? तो मास्टर मास्टरी कहते हैं, तो वो भी अगर इस फील्ड में आना, इसके लिए क्या होगा, ठीक है? मैंने इस फील्ड में कॉल की थी, तो चला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी बताएं भाई, मतलब कोई अगर इस बिजनेस में आना चाहता है वे आउट ऑफ फील्ड, मतलब कि जैसे कि मैं एक और फील्ड का बंदा था, मैंने काफ़ी रिसर्च की, मैंने काफ़ी स्टडी किया, ठीक है? मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब कि फैशन हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। फैशन हिस्ट्री और इसका फैशन ट्रेंड्स, आपको मैगजीन्स को फॉलो अप, आपको अपनी एस्थेटिक्स और आपको अपना स्टाइल इंप्रूव करना पड़ता है इन ऑर्डर टू स्टाइल समवन एल्स, ठीक है? तो ये चीज़ें अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस चीज़ में, अगर आपके पास वाकई में फन है, हर फन मौला है बंदा, तो फिर कर सकते देन व्हाई नॉट। सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को देखा जाए, क्या आप खुद कैसे हैं, उसके बाद एजुकेशन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है इस काम के लिए। ठीक है, तो और ये जो हर फन मौला का तो आपने बता दिया, इनको क्या करना है? हर फन मौला भाई, हर फन मौला तो कर लेगा, चले ये क्या करें बेचारे? ये क्या करें भाई, आप इनिशियली आप अपने दोस्तों के लिए आप कोशिश करें कि आप उनको कुछ बना के दें, आप